Students, in our last video I have already discussed about the chemical coordination in plants. Chapter 7 we have started, and now I'm taking auxins, because auxins is a new word for you, and even a new hormone. This hormone is found in plants, and this is very important hormone which is present in the plants. It is responsible for many things which are happening inside the plant. So first we will see this, what is it? Auxin is a Greek word actually, and it means that to grow. Auxin means to grow. So it is a hormone which initiates growing of a plant, means stem, or in the roots also it initiates the growth of a plant. So it is a powerful growth stimulant. First I have written here point wise. So first point is it is a powerful growth stimulant. मतलब ये क्या करता है, पेड़ को जो उसकी टिप्स होती हैं, चाहे स्टेम हो चाहे रूट्स हो, उसकी टिप्स को ग्रो करने में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. कई बार क्या होता है कि आर्टिफिशियली भी प्लांट्स को अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीजन दिया जाता है सो दैट दे कैन grow properly. Okay, so this is a main hormone which promotes the growth in the plants. Now higher as well as in the lower plants. Higher means even if a plant is very big or it is very small, then also the auxins are very helpful in the growth of a plant. Means even in the trees or big plants, and in the lower plants like algae, fungi also, the auxins are very effective for the growth. Then it is in the shoot apex, root apex and lateral meristem. Shoot apex का मतलब होता है कि आपका जो stem है, if the plant is growing like this is the leaf and these are the roots. Okay, so this leaf and the tip, जो उसकी tip होती है जहाँ पर एक नई bud निकल रही है, तो उसको grow करने में this is shoot apex. Okay, तो ऊपर की तरफ जो सबसे ज्यादा grow करता है, जो tip होता है plant का, that is called shoot apex. So it promotes the growth of a shoot apex downwards. ये जो रूट का बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर है, एक्सट्रीम पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द रूट एपेक्स. तो ये रूट के एपेक्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है. अलोंग विद दैट आई हैव रिटन लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम मतलब साइडवर्ड्स ग्रोथ. Okay, so it promotes the sideward growth also, the upward growth also, and the root apex are also growing due to the effect of this hormone. Then next one is this is IAA, indole 3-acetic acid. It is the main auxin found in plant. This question has again come many times. This full form is also to be written. You have to learn this. IAA जो है ये short form है, और indole 3-acetic acid ये इसका full form है. तो ये आपको learn करना है. This comes in for 1 marks also. 1 marks question that write the full form of IAA. So indole 3-acetic acid, keep it in mind properly, and you have to see कि ये आपका मेन ऑक्सिन है. समटाइम्स 1 marks क्वेश्चन इज देयर दैट which is the main auxin found in the plants, right? So main auxin is your indole 3-acetic acid, IAA. So please learn this. Okay, so these are the main points of the regarding auxins. Now what are the function of the auxins? It promotes the growth of a stem, roots and fruits by cell elongation. Now cell you have already read. तो ये क्या करता है ना, ऑक्सिन प्लांट में सेल को इलोंगेट करता है. इलोंगेट करना मतलब लंबा करना, और लंबा करने के बाद तब ये डिविजन करता है इसका. तो इसकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो प्रमोट ही इस तरीके से हो रही है कि आपकी जो स्टेम है, रूट्स है, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह है, the cells get elongated due to the effect of auxin. Auxin एक हार्मोन है, उसके इफेक्ट से क्या हो रहा है कि सेल जो है इलोंगेट हो रहा है, और इलोंगेट होने के कारण फिर उसमें डिवीजन इजीली हो जाता है. तो डिवीजन इजीली हो जाएगा, तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा, यू नो दैट सेल डिवीजन इज एक्चुअली मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल्स. ओके, सो तो प्लांट का भी ग्रोथ कैसे होगा, ड्यू टू द सेल इलोंगेशन. देन सेकेंड पॉइंट इज डिलेज लीफ सेनेसेंस. सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग. ठीक है, सेनेसेंस अगेन इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. सेनेसेंस एजिंग, एजिंग मतलब उम्र बढ़ना, है ना. तो ये क्या करता है, डिलेज सेनेसेंस. डिलेज मतलब प्लांट की जो एज है उसको धीरे धीरे मतलब उसको रोक के रखता है. अगर प्लांट आप ये सोचिए कि इट बिकम्स ओल्डर वेरी फास्ट, सो इट विल नॉट गिव द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, मीन्स दैट विल बी नॉट सो गुड बिकॉज द प्लांट इज गेटिंग ओल्डर. लेकिन सेनेसेंस अगर आप ऑक्सिन उसमें डालते हैं, या ऑक्सिन प्लांट में बहुत सारा है, तो उससे क्या होती है, प्लांट की एजिंग जो होती है वो डिले हो जाती है. डिले मतलब देर में एजिंग होती है, और उसकी लीव्स वगैरह जो होती है वो झड़ती नहीं है, एंड द प्लांट रिमेन्स ग्रीन फॉर अ लॉन्गर टाइम. So this is a word senescence.
सेनेसेंस मीन्स दिस एजिंग. एजिंग जो होती है ये एजिंग ये वर्ड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सेनेसेंस मतलब होता है. एंड रिमेंबर द स्पेलिंग ऑल्सो. एजिंग जो होती है प्लांट की रुक जाती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन्स. Then next one is promotes the apical dominance. This is very important. In a book also this is given. You can see this apical dominance. Apical dominance word has been given in blue color and this parthenocarpy. So please go through this. I am explaining the words. It promotes apical dominance. Apical dominance का मतलब होता है ऑक्सिन क्या करता है. एपेक्स का मतलब होता है जो ऊपर का पार्ट है. दिस वन. ओके. तो जो ऑक्सिन होता है ये सिर्फ ऊपर के पार्ट की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है. और जो ये लेटरल साइड है ना उसको प्रमोट नहीं करता है. तो ये क्या करता है, प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस एंड इनहिबिट्स द लेटरल बड्स. लेटरल बड्स मींस साइड वाइज. अगर आपका प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो बस ऑक्सिन के इफेक्ट से ऊपर को ही ग्रो करेगा, वो साइड को ग्रो नहीं करेगा. So the function is it promotes the apical dominance and inhibits the lateral buds. अब apical dominance जो word है इसका मतलब होता है dominance, मतलब कि ये इसको dominate कर रहा है. apex को मतलब सिर्फ टिप को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ग्रोथ के लिए. और इसकी वजह से जो प्लांट का सारा न्यूट्रिशन है that is being focused on this tip. प्लांट के पास जितना न्यूट्रिशन होगा वो फोकस कर रहा है इस ग्रोथ की तरफ. और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ ऊपर की तरफ को होती है, लेटरली नहीं होती है. लेटरली मतलब प्लांट जो है ऐसे में ग्रो नहीं करेगा, ओनली लाइक दिस. ओके. बट प्लांट वी नीड द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट दिस वे ऑल्सो. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट ऐसा है जो कि हम नहीं चाहते कि ये सिर्फ एपिकल डोमिनेंस को मतलब ऊपर को प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइड वाइज नहीं करता है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस मतलब कि सिर्फ प्लांट ऊपर को ग्रो कर रहा है और क्योंकि सारा न्यूट्रिशन प्लांट का जो है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है तो इस वजह से लेटरल बड्स जो है वो नहीं ग्रो हो पा रही है. अब आप इसको रोक भी सकते हैं. इफ यू वांट टू स्टॉप द एपिकल डोमिनेंस, व्हाट यू विल डू, if you are having a plant which is growing straight upwards only and you see that it is not growing sidewise, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एपिकल बड को तोड़ दीजिए, है ना. If you remove this apical bud, you will see that the plant is growing this way. And many times the example you have seen in your house also, maybe you have not focused or you have not thought about it, but you have seen the example. आपके घर में मेथी होती है सर्दियों में, तो मेथी में अगर आपके घरों में गार्डन्स हैं तो गार्डन में मेथी जो होती है, मेनी टाइम्स योर पेरेंट्स माइट हैव प्लग्ड इट फ्रॉम द अपर साइड. तो ऊपर की साइड से मेथी को तोड़ने का मतलब ही ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसका एपिकल डोमिनेंस स्टॉप कर रहे हैं और उसका लेटरल ग्रोथ जो होती है उसको प्रमोट कर रहे हैं. मतलब अदरवाइज मेथी क्या होगी, ऊपर को ही ग्रो करती जाएगी और उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है. अपर साइड को होगी तो देयर विल बी ओनली वन स्टेम, लेटरल साइड को होगी तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी एंड यू विल गेट लॉट ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम इट. सो टू स्टॉप द एपिकल डोमिनेंस, व्हाट योर पेरेंट्स यूज्ड टू डू, यू रिमूव द अपर टिप ऑफ द दिस प्लांट. जो मेथी होती है वो उसका अपर टिप निकाल देते हैं और जैसे ही उसका टिप निकालेंगे आप देखेंगे 1-2 हफ्ते में यू विल सी दैट द प्लांट हैज ग्रोन इन अ बुशी वे. बुशी वे मतलब वो चारों तरफ से ग्रो कर रहा है, नॉट ओनली द अपर साइड. So this is the way you can stop the apical dominance. If you remove the tip at the upper side, you can grow the plant in a lateral way and there can be a bushy appearance. Okay. Then next one is your rooting in the cutting. Like rose, जो आपकी रोज होती है ना, तो रोज में you know that you are using the stem of a rose. You don't directly use a plant or a seed of a rose. Instead, you are using the stem cutting. Then auxin again helps here to promote the rooting. मतलब जो आपने नई स्टेम लगाई है उसमें रूट तो है नहीं, तो उसमें रूट्स को डेवलप करने के लिए जो स्टेम होती है उसमें रूट्स को डेवलप करने के लिए अगेन ऑक्सिन इज वेरी हेल्पफुल. इफ ऑक्सिन इज प्रेजेंट इन अ कटिंग प्लांट में तो ये क्या करेगा, रूट इसमें बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगी. और अगर नहीं भी है उसमें ऑक्सिन प्रेजेंट, इट इज आर्टिफिशियली ऑल्सो मीन्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो ये अगर आप डालते हैं तो यू कैन प्रमोट द रूटिंग इन द कटिंग्स. ओके. कटिंग मतलब शुगर केन की भी लगाते हैं आप कटिंग, जिस चीज की भी कटिंग लगाते हैं यू कैन यूज ऑक्सिन देयर टू प्रमोट द रूटिंग. देन लास्ट वन इज पार्थिनोकार्पी. Parthenocarpy, what is this process? It is a process that a fruit is made without fertilization.
अभी तक आपने पीछे पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है आपने कि सीड किससे बनता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द यूनियन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट। पर पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि कभी कभी फ्रूट क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और तो भी फ्रूट बन जाता है। तो ये फ्रूट बनने का रीजन अगेन इज ऑक्सिन। ओके, ऑक्सिन क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी को। ओके, तो पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट fertilization. So without fertilization, it happens with the help of auxin. So these were the points and the functions of the auxins. So you have to learn this. This is a new chapter for you regarding the plant hormones, because animal hormones and human hormones you have gone through. But this is a new part for you. So please go through this. We are having 3-4 type of hormones ahead. We'll see all of them one by one, but there are some distinguishing features of each and every hormone, and that is given in a table ahead. 2-3 pages ahead it is given the differences between the hormones. So you have to see that what are the exact differences in the in all the hormones. Okay, so today I have given this auxins. Please go through this, learn this properly. It comes many times in exams. So for today I am taking this much only. Okay, thank you.